سرسبز اس گلزار کے یہ پھول ہیں عطار کے، مردہ دلوں کو دے جلا، ہادی ہے طلبگار کے، طلبگار کے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جبرائیل علیہ السلام نے مجھ سے عرض کی کہ رب تعالی فرماتا ہے، اے محمد، کیا تم اس بات پر راضی نہیں کہ تمہارا امتی تم پر ایک سلام بھیجے، میں اس پر 10 سلام بھیجوں؟ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اگر ماں باپ ناجائز کام کے لیے پیسہ مانگے، جیسے رسم رواجوں کے یہ الٹے سیدھے ہوتے ہیں، تو اس کے لیے اولاد پیسہ دے سکتی ہے یا نہیں؟ بابا وہ ہر الٹا سیدھا رواج گناہ بھرا ہوئی کیسے پتا چلے؟ مسئلہ نہیں ہے کہ باپ نے ماں نے بولا کہ ہم کو ڈھول خریدنا ہے، شادی ہو رہی ہے، ڈھول بجائیں گے، ڈنڈیاں بھی لیتے آ رہے ہیں، ڈنڈیاں راز کریں گے، ذرا اس کے لیے پیسے نہ دیں۔ دیکھو متعین ہو نا کہ گناہ کے لیے پیسے مانگ رہے ہو۔ منگنیوں کی جو رواج ہوتی ہے، جیسے لینا دینا، اس کے ہر رسم و رواج ناجائز نہیں ہوتا نا۔ دیکھو فکس ہو نا کہ فلاں رسم و رواج جو کر رہے ہیں یہ جائز ناجائز ہے، جبکہ ہو ناجائز، تو وہ اس کا جواب ہو سکتا ہے۔ چلو ٹھیک ہے، مہربانی۔ اگرچہ شادی میں بہت ساری غلط رسمیں ہیں، لیکن ہر غلط رسم کا ناجائز ہونا ضروری نہیں ہے۔ بعض مروت کے خلاف ہوتی ہیں، بعض فضول رسمیں ہوتی ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ فیصل بھٹی میرپور خاص ہے۔ پیارے باپا جان کی بارگاہ میں میرا سوال ہے کہ باپا ہمیں لمبے بال رکھنے کا شوق ہے، اور یہ کہ سنا ہے کہ گناہ ہے زیادہ لمبے بال رکھنا، تو رہنمائی فرما دے ہماری بات۔ ماشاء اللہ، دے ہمت ہے نا، ماشاء اللہ، بڑی بات ہے۔ اللہ آپ کو برکت دے بیٹے۔ یہ بال جو ہے نا، مرد کو اتنے بڑھانا کہ کندھوں سے نیچے چلے جائیں، یہ عورت کی نقل ہے، عورت کی مطلب مشابہت اس کو بولتے ہیں، عورت کی طرح ہے، تو یہ حرام ہے۔ اور عورت کو کٹوا کر کندھوں سے اوپر کر لینا، جیسے آج کل کرواتی ہے، یہ ان کے لیے حرام ہے کہ یہ مردوں کی نقل ہے۔ وہ اپنے بال اتنے بڑھائیں کہ بس وہ کندھوں سے چھو جائیں، اس سے نیچے نہ جائیں، اور یہاں سے کہیں سے کاٹیں نہیں، پورے بال رکھیں، اور زلفوں کی نیت کر لیں، زلفیں سنت ہے، اور ساتھ میں کوئی امامہ شریف ہو تو سونے پہ سہاگا۔ کیونکہ آج کل یہ بڑے بال رکھے جاتے ہیں تو پھر پیچھے سے کچھ پونی بناتے ہیں اور کیا کیا بناتے ہیں لوگ، تو یہ سب سنت ہی نہیں ہے اس طرح۔ اب اس لیے بنائی کہ میں کندھے کے تو اوپر رکھے، لیکن بناؤں گا پونی، سنت کی نیت نہیں ہے، تو پھر سارے ثواب نہیں ملے گا، پونی بنانے کا گناہ ملے گا، کہ پونی بھی عورت بناتی ہے، مرد نہیں بناتا۔ ماشاءاللہ، آپ کی جرت، مرحبا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ اولاد کو جو تحفتاً انعامی بانڈز ملتے ہیں، تو کیا والد اگر وہ بانڈز کھلتے ہیں تو کیا والد وہ بانڈز اپنے بچوں کے خود ساختہ خرید سکتا ہے؟ پھر وہ انعامی جو بانڈز کی رقم ہوگی وہ والد کی ملک ہو جائے، اس کی کیا صورت بنے گی؟ رہنمائی فرما دیجیے۔ اب انعام جس کو لگا ذرا اس کا ہے، اب باپ اس کو کیسے خریدے گا؟ خرید لیتا کہ انعام باپ حاصل کر لے۔ باپا جان جیسے 15-20 ہزار روپے کے انعامی بانڈز بچے کے پہلے سے ہی رکھے ہوئے ہیں، تو اب باپ کا ذہن ہے کہ میرے پاس رقم رکھی ہوئی ہے، میں وہ رقم جو ہے بچے کی کر دیتا ہوں، اور وہی انعامی بانڈز جو ہے وہ میں اپنے پاس رکھ لیتا ہوں، کھل جائیں گے تو پھر وہ جیسے انعام کی صورت میں اس سے کفالت بچوں کی بھی اچھی ہو جائے گی، اور گھر کے مسائل وغیرہ جو بھی ہوتے ہیں انسان کے، تو اس میں آسانی ہو جاتی ہے۔ تو اس کے حوالے سے بچے کے پاس ہو اگر بانڈ اور کھلتے ہیں تو اس رقم سے بھی تو بچے پر خرچ تو کیا جا سکتا ہے نا۔
अगर वो बच्चे ना समझे नाबालिग हैं जी तो सरपरस्त जो है वो उस रकम में उसकी किफालत तो कर सकता है, उससे बापा जान उसी मैं पर खर्च करे। मतलब सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। नज़ीर हुसैन अतारी बूरेवाला से महफिल मदीना में हाज़िरी देने के लिए आया हूँ। बाबा जान, मेरा आपसे सवाल ये है कि मस्जिद में सफ़ की जो जगह है वो ज़्यादा होती है और सफ़ जो होती है वो थोड़ी जगह पर बिछाई जाती है। आस-पास में भी अतराफ़ में इधर उधर जगह होती है लेकिन नमाजी वहाँ खड़े नहीं होते, तो पीछे सफ़ें बनती हैं। इस हवाले से क्या हुक्म? तरीका यही है कि दीवार तक सफ, दोनों तरफ दीवार तक एक मुक्तदी का भी उसमें जगह ना बचे, इससे पहले पीछे सफ नहीं बना सकते। ये कि वाकई अधूरी बिछी हुई नफ्सियाती असर होता है कि लोग पीछे खड़े हो जाएंगे। इसलिए मस्जिद में भी कोई मजबूरी ना हो तो दीवार तक सफ बिछी होनी चाहिए ताकि लोग यानी कि बढ़ ही जाए कि जिस सब पे जगह बाकी है। जज़ाकल्लाह। हमारे यहाँ तो ऐसा फैजान मदीना में तो शायद नहीं होगा, या यही है ऐसा नहीं है ना, यहाँ कहीं और मस्जिदों में जी। देखा हो। नमाज के बाद जमात पढ़ने की पाबंदी बन सके ज़रूर कुछ मदनी फुरशाद फरमाते हैं। नमाज बाजमात पढ़ने के लिए फ़ज़ाइल उसके पढ़े जाएं, ना पढ़ने पर जो वईद हैं उनका मुताला करें। फैज़ान नमाज में तो इंशाअल्लाह ज़हन बनेगा। ज़ाहिर को जब ये पता चले मालूमात होगी तो ज़हन बनेगा, और कोशिश भी करे अपना ज़हन बनाए कि कुछ भी हो जाए मुझे जब तक शरीयत इजाज़त न दे जमात तर्क नहीं करनी। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। बाबा जान, आपकी बारगाह में सवाल ये है कि अम्मी और अब्बू में लड़ाई झगड़ा वगैरह हो जाए तो किसकी तरफ साइड लेना चाहिए? बेटा आप किसकी साइड ले यूं? जी, आप आए कहाँ से? हैदराबाद रीजन से। माशाअल्लाह। अब आप न्यूट्रल ले रहे हैं, मशवरा यही है। अम्मी की साइड लेंगे, बाप नाराज होगा, बाप की साइड लेंगे, अम्मी नाराज हो जाएगी, आपकी साइड लेने से सुलह हो जाए, ऐसा तो शायद नहीं होगा। यानी चुप रहे तो मुझे तो इसी में भलाई लग रही है। अगरचे मजलूम का साथ देना चाहिए, लेकिन ये कि आपकी आवाज से लगते हैं छोटे से, बल्कि बड़े भी जो है ना, ये बहुत अब हर एक को समझ नहीं पड़ती कौन मजलूम है कौन जालिम है। तो यूं हम लोग यही मशवरा देते हैं कि आप एहतियात से काम लें, वरना दुआ करें, मसाइल वरना बढ़ सकते हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। अमीरुल सुन्नत उमैस रज़ा तारी हाज़िर खिदमतों। सवाल अर्ज़ ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह जामिअतुल मदीना में पढ़ते हैं, तो बाज़ तलबा का ये ज़हन होता है कि जामिअतुल मदीना में रहकर अगर दीनी काम किया जाए तो जो तालीम है इसके ऊपर असर पड़ता है, दरसी कुतुब वगैरह नहीं पढ़ी जा सकती, कमज़ोरी। और कुछ असातिज़ा अगर मना करें बाज़ असातिज़ा के दीनी काम अभी नहीं करो, अलमदनी बन जाओ या पढ़ लो, उसके बाद वक्ती वक्त काम करें, इस वक्त ना करें, पढ़ाई पर तवज्जो दें, तो क्या दीनी काम करने से, जो दावत इस्लामी के 12 दीनी काम है, इनका करने से पढ़ाई पर कुछ असर पड़ता है? इसके बारे में इरशाद फरमा दें। अल मदनी हमारी इस्तिलाह नहीं है। घर से निज़ामी पूरा कर ले तो हम उसको मदनी दस्तारबंदी करें, उसको मदनी बोलते हैं। जज़ाकल्लाह। अच्छा, दूसरा है कि कोई उस्ताद मना करता, कोई एक आध ऐसा हो सकता है कभी किसी ने कह दिया, आम तौर पे कहते नहीं होंगे ऐसा कि वो दीनी काम से जो रोके उसको वलीद बिन मुगीरा से तरकीब बन सकती है उसकी। वलीद बिन मुगीरा के बारे में कुरान करीम में मन्नाइल लिल खैर ने 10 ऐब उसके बयान किए कुरान करीम में। उसमें एक ये भी था कि भलाई से बड़ा रोकने वाला, तो जो दीन के काम से रोकेगा वो भलाई से रोकने वाला हुआ। अब दीन के काम से रोकना भी अगर भलाई से रोकना नहीं है तो फिर अपने को समझावे कि भलाई क्या होती है। तो ऐसा कोई उस्ताद करे, इंशाअल्लाह ऐसा होगा नहीं कोई, मतलब अल्लाह बेहतर जाने। अगर है भी तो ऐसा उसको करना नहीं चाहिए, तौबा करनी चाहिए कि दीन के काम से रोकना अस्तगफिरुल्लाह बहुत ही बुरी बात है। और तलबा कराम इसके बारे में क्या ज़हन बनाए? जी, तलबा कराम क्या ज़हन बनाए इसके बारे में? उसके बारे में अगर कोई ऐसा करता तो गलत करता। मजलिस
को जाकर यानी कि बताएं उसको कि ये हमको ऐसा बोला, उसको समझाएं। और क्या हो सकता है? डंडा लेकर उस्ताद को मारने का तो मशवरा दूंगा नहीं मैं। अब मजलिस को शिकायत करें, दरखास्त करें, ऐसा तो मजलिस समझा देगी, ना समझाए तो फिर मेरे और मेरे जिंदगी भर उसको निभाने का मजलिस ने टेका तो लिया नहीं है। चाहिए तो वो जो अल्लाह के दीन की खिदमत करे, खुदा का खौफ रखता हो। खौफ खुदा वाला जबान से बोलना क्या, दिल में सोचेगा भी नहीं कि मैं इसको दीन के काम से रोकूं, माज़ अल्लाह। तो बहरहाल ये कि अब मदनी बन जाओ तो फिर काम करना, ये भी अजीब यार। तो क्या जिंदा रहने की गारंटी क्या है? मदनी बनेगा, और मदनी बनेगा तो उसमें कौन से सुरखाब के पर लग जाएंगे कि अब ये दीन का काम करने के इसको और मिल गई सनद, मेरा क्या बनेगा? मैं तो मदनी नहीं हूं, जामियतुल मदीना में पढ़ा हुआ नहीं हूं। आज इमरान का क्या बनेगा? तो ये मतलब बेकार बात है। यानी कि जब होश आया, समझ पड़ी, नेकी की दावत देनी शुरू कर दे। इंशाअल्लाह शरीयत के मुताबिक हो, जितना मतलब है कि दीन ने, शरीयत ने इजाजत दी है उतना ये करता रहे। तालिब इल्म दीन का काम करेगा, दीन का काम करते करते मदनी बनेगा ना, तो इंशाल्लाह इसका रंग कुछ और होगा इंशाअल्लाह। फिर जब बन गया मदनी तो अब माँ बाप बोलेंगे कमा अकेला, शादी कराएंगे तेरी। अब वो कम आएगा ना, शादियां करेगा ना, फिर क्या काम करेगा? अभी से आदत पड़ेगी ना। ये दीगर तंजीमें, सियासी तंजीमें भी तलबा पर हाथ रखती हैं, इनके ग्रुप बनाती हैं। तलबा जितना काम कर सकते हैं ना, गैर तलबा नहीं कर सकते। तलबा के पास टेंशन कम होता है, जो बेचारे बड़े हो जाते हैं, बाल बच्चे वाले, टेंशन बहुत होता है, काम कम करते, इतना टाइम नहीं मिलता। तलबा का टाइम बहुत होता है। ये बिल्कुल तलबा को तो बिल्कुल काम ही करना चाहिए। बिल्कुल कोई बोलता भी है कि पहले पढ़, तो पढ़ना साथ रखना है। इमाम आजम ने पहले पढ़ा था या शुरू से काम किया था? इसी तरह अपने दीगर बुजुर्गान ने दीन की जो सीरतें देखे तो सबने इस्लाम की तबलीग की है। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितनी इस्लाम की तबलीग की, सहाबा किराम ने, ये सब ने कौन से मतलब दरस निज़ामी करके काम शुरू किया था? तो ऐसी बातें करावाई। हमारी तो जिंदगी का हिस्सा है दीन का काम, उठना बैठना चलना फिरना सब, हर हाल में मुबल्लिग दीन का काम करता रहे, नेकी की दावत काम करता रहे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। क्या 11वीं शरीफ का बकरा मस्जिद में लगा सकते हैं बेचकर, उसकी रकम रहनुमाई फरमा दीजिए, जज़ाकल्लाहु खैरा। अगर आपके अपने पैसों से आपने 11वीं शरीफ के लिए बकरा पाला है न्यास के लिए, तो है अभी तो आप इसके मालिक हैं, जो चाहे करें। लेकिन अब जो एक नियत कर ली ना, तो यहाँ हमारा उर्फ ये होता है कि बकरे को काट कर इसका गोश्त जो है इसको पका पको के नियाज करते हैं। तो इस उर्फ को अहले सुन्नत के मामूलात में से इसी को मतलब करना चाहिए। अलबत्ता अगर किसी ने ये बेचकर मस्जिद में पैसे लगा दिए तब भी जायज़ है। लेकिन एक न्याज की जो एक हमारे यहाँ, इससे भी अकीदा मजबूत होता है, गोश्त पाक की मोहब्बत बढ़ती है, इसको भी बाकी रखना चाहिए। ऐसा कोई अगर बेचकर पैसे दे देता है कि ये लगा दो, 11वीं शरीफ का बकरा था मेरे पास, मैं बेच के आपको मस्जिद के लिए दे रहा हूँ, तो क्या वो लेकर मस्जिद में लगा सकते हैं? जायज़ तो है, मैंने कहा जायज़ है। जज़ाकल्लाहु खैर। वैयाकुम। अली रज़ा अत्तारी सिंध का शहर मिरपुखात से महफिल मदीना में हाज़िरी हुई है। अमीर अहले सुन्नत की बारगाह में मेरा सवाल है कि जानवर की खूबसूरती के इजाफे के लिए कुछ लोग जानवर के सींग तराशते हैं या ज़रूरत से ज़्यादा काट देते हैं, तो आया क्या इस तरह काटने या तराशने के बाद जानवर जो है वो कुर्बानी के लायक रहता है? बछड़े और गायें वगैरह, इन चीज़ों की बात। ये इसमें ज़्यादा बेचारा जो वो नर है ना, वो आज़माइश में आता है, बेल। ये के सींग ये लोग जड़ से उखाड़ देते हैं। इसकी कोई इनके बाद टेक्निक होती है जो बड़ी तकलीफ दे होता है उस जानवर के लिए, और फिर ये कि उसकी जगह फिर नया सींग आ जाता है। तब अगर वो जख्म भर गया है, जख्म, और ये फिर इतना सा सींग आ जाता है, खूबसूरती ये होती है बेलों की आजकल। ये वरना बड़े सींग वाला बेल आदमी हाथ नहीं रखेगा, और ये खूबसूरत होता है तो ले जाते हैं।
हालांकि इतना इतना सींग जो खूबसूरत नजर आ रहा है, हकीकत में ये बाज औकात बड़े गोल सींगों वाला होता है, ये जो खेड़ के ये तरकीब बना रहे होते हैं, और ये छोटा जो उगा ये भी असली होता है। तो ये इस तरह की मतलब यानी कि जानवर की कि ये ऐब नहीं है, इससे कुर्बानी हो जाती है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। बाबा सवाल ये करना था कि हुसूल इल्म इस दरमियान बुज़ुर्गों से ही मनकूल है कि तालिब इल्म के साथ 3 चीज़ें दरपेश होती हैं, इल्लत, किल्लत और ज़िल्लत। बाज़ औक़ात इन तीनों चीज़ों को कंप्रोमाइज़ करते हुए साथ चलाते हुए पढ़ाई का प्रोसेस जारी रखना ये बड़ा मुश्किल हो रहा होता है। बाज़ औक़ात इल्लत भी ज़्यादा हो जाती है और किल्लत भी हो जाती है, और फिर ज़िल्लत भी बाज़ औक़ात दर्जे में सबक याद ना होने की बिना पर या दूसरी वजूहात की बिना पर भी हो रही होती है। तो इन सारी चीज़ों को किस तरह कंप्रोमाइज़ करते हुए अपनी तालीम का प्रोसीजर जारी, इज्जत मिले, नेमत मिले, दौलत मिले, रहमत मिले। अब ये तो आप लोगों का फील्ड है, इल्लत किल्लत और ये जिल्लत, तो इसी को आप अभी आपको ही कंप्रोमाइज कर रहे हैं इनके साथ। ये छोड़ने का असबाब तो कई होते हैं जिनमें ये भी हो सकते हैं। नीयत साफ मंजिल आसान, अगर रिजा इलाही पेश नजर हो और अगर दिल थोड़ा ना करे, हिम्मत रखे तो पड़ जाता है, वरना फिर अच्छी खासी सहूलतों के बावजूद नहीं पड़ता। बाबा कहते हैं कि जो सोना कारीगर की ज़र्ब से डरता हो ना, वो गले का हार नहीं बनता। वो जेवर तभी बनता है जब उस पर हल्की हल्की ज़रबें पड़ती हैं। खाली ज़रबे नहीं, आग में उसको कुंदन बनता है। हाँ, सब कुछ होता है उसके साथ। ये कचरा मिला हुआ होता है, जब ये निकलता है इसको आगों में डाल कर इसको साफ सुथरा करते हैं, फिर नरम करते हैं, फिर उसको फिर कहीं जाकर किसी के गले का हार बनता है सोना। तो इसी तरह आलिम बनना है तो सर कुछ ना कुछ तो तकलीफ होगी ना, खाली फूंक मारे आलिम बन जाए दूसरे तो दरस निज़ामी कर ले तो समझे कि अल्लामा सब बन गए, ये भी जरूरी नहीं है। आलिम इल्म से होता है, सनत से नहीं होता। हालात फरमाते ना, सनत कोई चीज नहीं है, इल्म चाहिए। माशाअल्लाह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। हाफिज़ कुरान अगर मंज़िल भूल जाए तो उसका कोई आसान तरीका? उसको छुपाना चाहिए, किसी पर इजहार नहीं करना चाहिए कि मैं भूल गया हूँ। और तरीका क्या है, दोबारा उसको पढ़े, पक्का करना शुरू करे शुरू से। जो मंजिल कच्ची है शुरू से सल, वो आम तौर पे है ऐसा कि एक तादाद है जो भूल जाते, जिनको बुला दिया जाता है। तो इसमें ये हाँ, मुसल्ला सुनाने वाले शाबान में तैयारियां करते हैं, रजब में करते होंगे, वो सारा साल पढ़ते नहीं। सारा साल एक मंजिल अगर पढ़ता रहे ना रोज की, तो ऐसा याद हो उसको कि क्या बात है। एक मंजिल नहीं पढ़ सकता तो कम से कम आधी मंजिल या एक पारा तो पढ़े, खोल के देखते भी नहीं है। मुबालगा करूं तो हाफिज साहिबान कहीं खत्म में जाएंगे तो वहां पढ़ेंगे, बाकी आमतौर पर नहीं पढ़ते। इनको हिफ्ज करना आसान है, हिफ्ज को बाकी रखना यह मुश्किल है। तो इसको बाकी रखे कि आखिरत की बड़ी इन्हें इस पर सादत है। अब ये कि दोबारा पढ़ के दोबारा यही हो सकता है। और अब ऐसा कोई मेरे पास विर्द तो है नहीं, मंजिल कच्ची होगी तो विर्द पढ़ लो तो चुपचाप वो पूरा वापस सीने में आ जाएगा। मेरा ये सवाल है कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार करने के लिए कौन सा वजीफा करना चाहिए, और क्या आपने भी हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार किया हुआ है? मदनी पंसूरा पेज नंबर 167 167 से 168 नबी अकरम नूर मुजस्सम शाफ़िए उम्मम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, शफाअत निशान है। जो शख्स ये दुरूद पाक अल्लाहुम्मा सल्ली अला रूही मुहम्मदिन फिल अरवाही व अला जसदिही फिल अजसादी व अला कब्रिही फिल कुबूर पढ़े, उसको ख्वाब में मेरी ज़ियारत होगी। और जिसने ख्वाब में मुझे देखा वो मुझे क़यामत के दिन भी देखेगा, और जो मुझे क़यामत के दिन देख लेगा मैं उसकी शफाअत करूँगा, और मैं जिसकी शफाअत करूँगा वो हौज़े कौसर से पानी पिएगा।
اور اس کے جسم کو اللہ پاک دوزخ پر حرام کر دے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. باپا عرض یہ کرنی تھی، یہ چل مدینہ کی جو اصطلاح ہے یا چل مدینہ کا سلسلہ، اس کے پیچھے وہ ہمیں ہماری فرما دیں کہ یہ کب سے سٹارٹ ہوا ہے؟ بہت پرانی بات ہے. جب میں ہفتہ وار اجتماع میں اپنے ایک اسلامی بھائی کے ساتھ اسکوٹر پر بیٹھ کر فیضان مدینہ آ رہا تھا، پیچھے ڈبل سواری میں بیٹھ کے، تو صدر پر ایک رکشہ کھڑا تھا، نہیں ایک رکشہ شاید جا رہا تھا، تو اس کے پیچھے لکھا ہوا تھا چل مدینہ. تو ہم نے اس کا پیچھا کیا، جا اسی روٹ پہ تھا. تو صدر پہ وہ جب سگنل ہے وہ رکا ہوگا، ہم اتر گئے اور ہم نے رکشے والے سے ملاقات کی، اس کو بتایا کہ ہم اس وجہ سے آپ سے ملاقات کی ہے کہ آپ کے پیچھے چل مدینہ لکھا ہوا ہے. یہ مزہ آیا مجھے. پھر وہ ہفتہ وار اجتماع میں حاضری ہوئی. اب یہ فیضان مدینہ کا واقعہ یا گلزار حبیب کا واقعہ ہے، یہ تھوڑا ذہن سے نکل رہا ہے. ہو سکتا ہے گلزار حبیب کا واقعہ ہو، اللہ بہتر جانے. تو خیر وہ جب ہفتہ وار اجتماع ختم ہوا تو میں ملاقات کرتا تھا اسلامی بھائیوں سے، تو میں ملاقات کرتا تھا اور چل مدینہ کے ٹھپے لگاتا تھا ملاقات کرنے والوں سے. تو یوں چل مدینہ چل پڑا. یہ ہوگا تو گلزار حبیب پہ، یہ شاید ہوگا گلزار حبیب سے ہی، کیونکہ شاید ہو سکتا ہے، کیونکہ چل مدینہ کا جو سلسلہ تھا وہ تو جب میں دعوت اسلامی میں آیا ہوں تو یہ سلسلہ تو جاری تھا نا. تو آپ گلزار حبیب میں آئے. میں گلزار حبیب کا ہوا تھا. جیسے کہ میں سفر وغیرہ میں جا رہے ہوتے ہیں، گانے وغیرہ چل رہے ہوتے ہیں، تو اگر میں نماز پڑھنے جاتا ہوں تو میرا جو ہے نا ذہنوں کے اندر گانے وغیرہ آ جاتے ہیں، تو اس صورت میں نماز ہوگی یا نہیں؟ گانوں پر توجہ نہ دیجیے. اب یہ کہ بسوں میں اور یہ نہیں بابا جان، جیسے کہ آتے نہیں ہے، جیسے کہ میں ٹریفک وغیرہ میں چل رہا ہوں یا نماز پڑھنے جا رہا ہوں تو گانے وغیرہ بج رہے ہوتے ہیں. اچھا راستے میں آوازیں آتی ہیں. جی بالکل. ہاں تو اب اس کا کیا حل ہے؟ نماز تو ہو جائیے، اس کی طرف توجہ نہ دیں گانے بازوں کی طرف. تو یہ وسوسے تو سب کو آتے ہیں عام طور پہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. سرسبز اس گلزار کے یہ